The resource person, as you all know, is Mr. Anil Goswami, a graduate from Thapar Engineering College of Patiala. He retired as Superintendent Engineer of Haryana government. And then, he has worked abroad for 5 years, and then for 10 years, he was the head of IT of a US IT company. He's an extremely erudite scholar. And the most beautiful thing is he continues his learning journey even at this age. And I cannot say anything more than that it is a matter of great pride for me that Mr. Anil Goswami is a very close friend of mine. It gives me great pleasure to see him presenting the fundamentals of Blue or Red Ocean strategy to all of you. He has vast experience, and I'm sure he will bring insights to this topic, which will be invaluable to all of us. Yes, Anil sir, please take over. Thank you, sir. Good evening, everyone. My deepest gratitude to my mentor, Arun Subramaniam sir, just now introduced me. He is globally recognized leader who has served as CEO for multiple multinational organizations and now visits prestigious foreign institutes, USA and other countries also, and mentoring students and entrepreneurs. His in-depth knowledge, wisdom, and guidance continue to shape many lives, including my journey, and I am deeply honored by his presence here today. I am also incredibly grateful for the opportunity to speak before such a exceptionally knowledgeable audience, distinguished professionals from defense, from ISRO, from education background, from finance, and many entrepreneurs, many of whom have alumni for IITs and other premier institutes. Topic for today is Blue Ocean Strategy. So why entrepreneurs need it? Gentlemen, do you know in India the closure rate of companies is huge. 6.8 lakh companies have already closed, though they are from the main technical background, competent people, because of certain things, they have closed. And 20% companies, they fail in very first year, and 30% they fail by fifth year, and nearly 70% don't even survive beyond 10 years. In India, the scale is even more. So as it is depicted on the graphic, so there are 6.8 lakh companies. So the news is, it is a very credible source. It was reported in Lok Sabha. So I would like to narrate you two stories, small stories. There was a gentleman, he wanted to do fishing. He went to nearby lake, he went there and he found hundreds of people there, his companions, his competitors, all of them with the same tools, all of them with the net, all of them with the bait, all of them with the hook. And they all together, they were in a small pond, they were all fighting together. And what was happened? They were fighting, and there was a bloodbath all around. So this is what it is called Red Ocean. When you want to do the business, so in a very confined way, in a very short territory, and you use the same tools, that is Red Ocean. But among them, there was another gentleman. He diverted his boat to some little farther place, is a different place, and he found a new place where there was nothing, and he was alone there.
He started fishing there. He was very comfortable and he was enjoying. And this is what we call it blue ocean. Blue ocean means you don't compete with people, but you find something different for you. So this is the difference between red ocean and blue ocean, and we will today try to find out so why people go to red ocean and what are the characteristics of red ocean, how we can change from red ocean to blue ocean. So this we are going to talk today, everything today. So another story, हम जब बचपन में थे, we used to see, circus. हम सर्कस देखा करते थे. There used to be many wild elements. हाथी थे, चीते थे, lions थे, and they were put into cave. But what happened with the change of regulatory requirements, with the legal requirements, government banned certain things because it was treated to be inhuman, illegal to put them in cage. And then people start seeing the video films. बच्चे सारे आते थे और जो वीडियो फिल्म देखते थे, और इससे क्या हुआ, ये सारा जो सर्कस का था, दे स्टार्टेड द बिजनेस गोइंग डाउन एंड डाउन. और बड़ी छोटी सी टिकट में दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव. एंड व्हाट दे डिड, देयर वाज वन कंपनी, Cirque du Soleil. Both they were also doing the circus, but what they did not compete with these people, with the circus people. They changed the path, they changed the course. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा ये they reduced so many things, they reduced the animals, they rather eliminated the element, they eliminated this the rail master, they eliminated many other those who are high paid. And वो जो स्ट्रीट के बच्चे थे, वहां पे जो परफॉर्मर थे, छोटे छोटे स्ट्रीट के बच्चे थे, they came in and they started new venture which was called this Cirque du Soleil. वो जब उन्होंने ये नया वेंचर स्टार्ट किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें म्यूजिक भरा, उन्होंने उसमें स्टोरी राइटिंग भरी, एंड दे वर टोटली डिफरेंट एंड दे वर सो सक्सेसफुल. आज जो कंपनी है, दे आर वर्किंग इन मोर देन 20 कंट्रीज एंड दे आर मल्टी बिलियनर कंपनी. वो जो छोटी सी कंपनी थी, दे बिकेम बिलियनर्स. दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे. So best way to beat your competition is to completely stop trying to beat them. आपको जितने आपके कंपिटिटर्स हैं उनसे पीछे हट जाओ, उनकी तरफ मत देखो और अपना डिफरेंट अपना माइंड सेट बनाओ, और उसमें जाके उसको डिफरेंट उसको कंपटीशन में आने की बजाय अपना कोर्स चेंज करो और डू समथिंग डिफरेंट. ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ अस दे हैव सम ड्रीम इन लाइफ that I want to start some business, I want to entrepreneur. Most of them, even we are doing the service also, but more, please mute. Most of us, what they have done is, तो हम ये सोचते हैं यार मैं भी कभी ना कभी बिजनेस करता या करूंगा, बट ये हमारा ड्रीम होता है. और जब हम ये चीजें सोचते हैं, व्हाट इज इन आवर माइंड, आई विल क्रिएट न्यू मार्केट, आई विल be first person to be a bottled water. वहाँ पानी नहीं मिलता, वहाँ people are taking tapped water. I am going to make a small unit and make a bottled water. There is a huge opportunity for this. This is what it is in my mind, and I shall build a product so different that people stop and say this is new. So वो लोग कहेंगे क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल नई चीज इसने पेश कर दी. This comes in my mind when I want to become entrepreneur, when I want to start the business. So then another thing it comes to my mind is I will compete with myself. मैं किसी और से competition नहीं करूंगा. Just like Apple, I will create my own versions every year, जैसे Apple करता है. Same thing, driven by progress, defined by me. मैं अपने आप को ऐसा करूंगा, सिर्फ मेरे से ही मुकाबला होगा, मैं किसी से मुकाबला नहीं करूंगा. So another thing, if I do some car business, cab business, मैं ऐसा business करूंगा कि जिसमें ladies are feeling very secure, very safe. Even night time, I will ensure that they feel pleasant journey even at 2 o'clock at night when they want to travel, and I'll provide them comfort, security, and peace of mind. So another thing, what I think when I want to become entrepreneur, my business will grow fast and no limits. Not
incrementally, but I will grow from one store if I create to many stores, up to 100 stores, and I will enjoy like this. And in this process, I will enjoy huge profit, big success. My family will enjoy. I will have foreign trips all around, and I will put my children into top institutes of India and abroad. This is what I think. Success shared through vision and momentum. I just shared this thing in my mind. And then another thing, what I feel, so I will work like my hobby, ikigai. अब मैं जो भी काम करूंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा अपना, क्योंकि मेरा अपना काम होगा। मैं किसी और का एम्प्लॉय नहीं बनूंगा। मैं आई विल स्टार्ट माय ओन थिंग, आई विल बी एंटरप्रेन्योर, आई विल स्टार्ट माय, दिस इज व्हाट आई थिंक। बट जेंटलमैन, my dear friend, what happened actually when I put my step into it? What happens in reality? Let us see what happens in the reality. रियलिटी व्हाट आई फाइंड इज, मार्केट, जब मैं कॉफी की दुकान एक सोचा मैं खोलूंगा, व्हेन आई सी इट, आई वांट टू स्टार्ट ए शॉप ऑफ कॉफी, देन आई फाइंड इन द मार्केट dozens of coffee shop. So this is what I, and I became so anxious what is happening now. एक मैं छोटी सी आइटम प्रोड्यूस करता हूँ, से प्रोटीन का कोई मैं बार प्रोड्यूस करता हूँ, व्हेन आई गो एंड लॉन्च दिस प्रोडक्ट, व्हाट हैपेंस सर? सो वो hundreds of identical products are in the already in the market, so there is a lot of competition which is coming. So और मैं उसके बाद रोज थोड़ी मॉडिफिकेशन करता हूँ, अपने जो पैकेज मटेरियल है उसमें लेबल लगाता हूँ, उसको सुंदर करता हूँ. In this process, I am incurring more and more expenses on my product. My costing is going up day by day. So मैं इसी में ही बिजी हूँ, और मैं जो है लॉन्ग साइटेडनेस में भूल जाता हूँ भी मैंने क्या करना है, मेरे बिजनेस का विजन क्या है, मेरे बिजनेस का क्या क्या गोल क्या है मेरा. क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों में ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज मैं साथ वाली दुकान जो है जिससे मैं कंपटीशन करता हूँ उसी की तरफ मैं देखता रहता हूँ. एंड देन totally my mind is totally absorbed in these things. So उसके बाद the next thing is, I am too, I am concerned about, either I think about cost or I think about quality. Because it is a battle I fight every day. If I choose good ingredients, my cost goes up and people complain the price too high. If I lower the quality to reduce the price, customers walk away as if I have never cared them. I am stuck in a cruel tug of war between what my hearts want to offer, what the market. मैं चाहता हूँ लोगों को चीज सस्ती दूं, मगर लोग कहते हैं ये सस्ती जो तुम कर रहे हो, योर क्वालिटी हैज गॉन डाउन एंड वी आर वॉकिंग आउट. और लोग छोड़ जाते हैं, वो जाते, एंड माई बिजनेस गोज डाउन. Then there is a cutthroat competition is there. I have to fight with everything. I have just to stay alive in the market. The moment my competition drops their price, मेरे जो competitor साथ वाला जब price कम करता है, I am forced to drive to, not because I want to do it, but because survival leaves me no choice. मेरे लिए कोई option नहीं भाई. Then I start giving discounts, buy one, buy free. I end up giving extra discounts and free things, slowly draining my profit drop by drop. I offer, so many complimentary things. And in the end of the month, after all the efforts, all the hope, all the sleepless nights, I look numbers and realize that I have lost a lot of money. It breaks you, not just financially, but emotionally also. My grand opening, जो मैंने बोर्ड लगाया था grand opening, it has become to closing, clearance closing. This is what actually happened with me. Why? Why it happened? Why this thing is called? This thing is called commodization. This whole thing is called commodization. When I lose so many things, So my dream from blue ocean to red ocean, my dream charted the course, but really handed me the storms. So this commodization, what is commodization? We will now understand. All this thing, what I have told is because of commodization. But let me be little more specific and make you understand what exactly there are. There are 5 actors for commodization.
What are those 5 factors? Number one is prolification. Prolification, we will take up one by one and I'll make you, explain. I'll make you understand. First is prolification. Second is deterioration. Third is escalation. And fourth is standardization. And fifth is knowledge diffusion. चारों तरफ knowledge आ रही है, knowledge diffusion. Let me take one by one. What is prolification? Prolification means मैंने एक जगह जाके I started pure water. I started a business of pure water, made a unit and put my price at 20 rupees. Within no time, there are dozens of other companies come and they also display their product. Like Bisleri came first, now Kinley came, other Aquafina came, and numberless came, and the water is same pure water, and this is what it is happening, and I am totally stuck in red ocean. This is called proliferation. Next is deterioration. Deterioration आपने देखा है, जिसको बचपन में याद है, मुझे याद है, जो हम सीनियर लोग हैं. It started the surf. It was the only company, and the rate was very high. Only very very luxurious people and very rich people they used to afford it. उसके बाद निर्मा साहब आए, छोटा सा ये कंपनी थी निर्मा, and he challenged surf. This is what deterioration. When we think so, we are the only one, but in market, people come and they copy your product and they launch the product and they reduce their rates. And in the process, you have also to, reduce your rate. This is a big example. Surf versus Nirma, and many more. You find this thing. Well, washing soaps. देन एस्केलेशन. एस्केलेशन क्या है? आपका मोबाइल है, ये जो बेच रहे हैं कंपनियां, एक्सेप्ट एप्पल एंड वन मोर, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोई बटन ज्यादा लगा रहा है, कोई चीज एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा राइज कर रहा है. दे गिव यू मोर एंड मोर फीचर्स. दे गिव यू मोर फीचर्स. In that process, your cost is going up and your profit is going down day by day. I hope you all understand. A cost is from the trader side, cost is from the manufacturer side, and price is from the buyer side. This is the difference between cost and price. So next is standardization. What is standardization? Standardization means एक तरीके के टेलीकॉम की चीजें हैं वहां पे लगी हुई हैं और सबको पता है स्टैंडर्ड फिक्स है, स्पेसिफिकेशन फिक्स है, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज टू बी मेड एंड दे कॉपी इट. When everything looking the same in the red ocean produce become clones, just like telephone plan, same call, same data, same offer. When uniqueness is totally disappearing, brands lose their voice and customers stop caring. A clone is just a copy of something, just like when you draw the same picture twice. It means two things that look like. कुछ में डिफरेंस नहीं है. आप जो भी चीज कर रहे हो वो सेम दूसरा भी वही चीज प्रोड्यूस कर रहा है. Then there is a knowledge diffusion. What is knowledge diffusion? This is another actor of commoditization. Knowledge diffusion ये है, जैसे सूरज सुबह चढ़ता है, सूरज की रोशनी 360 डिग्री सबको रोशनी देती है. वो किसी को नहीं ऐसे कहती उसको मैं नहीं दूंगा, इसको दूंगा. इट गिव्स लाइट टू एवरीवन. इसी तरीके से आज की जो नॉलेज है वो पुरानी नॉलेज नहीं है. इट इज टोटली स्प्रेड नॉलेज, एंड विद द स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग. कोई आदमी यूट्यूब पे जाके देख रहा है, कोई आदमी गूगल में जाके देख रहा है. यू आर ऑल गेटिंग एवरीथिंग. और ये जो पुरानी चीज है वो जो है मैं ये चीज प्रोड्यूस करूंगा, आई बी यूनिकनेस गोज टोटली डिसअपियर. देयर इज नॉट एट ऑल यूनिकनेस इज देयर. दिस इज व्हाट हैपेंस. जैसे कुछ बच्चे गए, वो आइसक्रीम लेने जाते हैं, ये क्वालिटी की आइसक्रीम लेनी है, सब कई दुकानें खुली हुई हैं. कॉमोडाइजेशन. दिस इज कॉमोडाइजेशन. They have choice, customer has choice where to go, and the seller has no choice except to reduce the rate. वो जाएगा, वो उनको ट्रैक्ट करने का रेट अपना कम करेगा. रेट करने से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है कम होता जाता है. एंड यू आर इन कॉमोडाइजेशन, यू आर इन रेड ओशन. रेड ओशन मीन्स योर बिजनेस इज collapsing. This is called red ocean. So this is all in short. Commoditization is what? Commoditization is everybody wants to copy other. They are copycat. There is a price war. People want to compete you
what because उनकी प्रोडक्ट तो आप जैसी है. ओनली थिंग व्हाट दे कैन डू इज दे विल रिड्यूस द रेट. वो अपना रेट ही कम कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है. एंड अल्टीमेटली देयर प्रॉफिट गोज डाउन डे बाई डे. और उनकी मार्केटिंग पे इतना पैसा ही नहीं बचता वो मार्केटिंग कर सके, क्योंकि वो जो मार्जिन लेवल है इतना कम हो जाता है, उनकी मार्केटिंग भी कम हो जाती है. और पुअर एक्सपीरियंस है उनका. जो एक्सपीरियंस का मतलब ये है, कोई आपका चीज लेने आता है, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो, कैसा वो उसकी उसकी जो कस्टमर जर्नी किस तरह की है, पेन पॉइंट क्या है उसके. दिस इज व्हाट इट इज देयर. एंड यू आर रेसिंग टुवर्ड द बॉटम. आप नीचे ही नीचे जा रहे हो, क्योंकि जो आपकी टेक लेवलिंग है वो भी सबके साथ वही है, सबके साथ वही टूल है, वही इंस्ट्रूमेंट है, वही सबके सारे प्रोसेस वही है. वो आप कहीं नहीं रहते. यू आर टोटली इन दी कम्युनिटी ट्रैप. और आपका बिजनेस जो है, दिस इज वन ऑफ द रीजन वो फेल होता जाता है. और रियलिटी ये है, 63% कंपनी फेस कॉमोडाइजेशन. 63% कंपनियां जो है वो कॉमोडाइजेशन को फेस कर रही हैं. दिस इज द डाटा, यू नो. एंड 54% कंपनीज हैव येट टू टेक सभी. 54% कंपनियां जो है उस पर कोई एक्शन ही ले सकती. वो बिल्कुल दे इमोबाइल हो जाती है व्हाट टू डू. And this whole, what I am telling is, this is research was done by Professor W. Cham Kim and Rennie. So, इन्होंने एक किताब लिखी और रिसर्च की. बहुत सारे लोगों को ये देख के ये रिसर्च किया, रेड ओशन पे, ब्लू ओशन पे क्या क्या कारण है. एंड बिलियंस ऑफ बुक्स दे हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड थ्रू दिस पर्सन. हाउ टू एस्केप नाउ फ्रॉम कॉमोडाइजेशन. इन्होंने सारी किताबें लिखी हैं. और ये क्या मेन रीजन क्या है इसका. ये जो 54% लोग हैं वो कहते हैं, यार मुझे 5% प्रॉफिट तो हो रहा है ना, चुप करके लिए जाओ, 10% लिए जाओ. अब उनको ये नहीं पता, बाय द टाइम यू आर थिंकिंग दिस थिंग एंड आपके नीचे अंडर करंट इज गोइंग ऑन, एंड वन डे योर बोट विल ओवरटर्न एंड योर बिजनेस विल टोटली कोलैप्स. आपका 5-10% भी आपका टोटली खत्म होने वाला है. दिस इज व्हाट हैपेंड विद नोकिया. दिस इज व्हाट हैपेंड विद कोटक. नोकिया में क्या हुआ, दे वर नॉट एबल टू चेंज देमसेल्फ एंड अल्टीमेटली दे कोलैप्स. दे वर थिंकिंग वी आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट ना. दे नेवर थॉट देयर कंपटीटर्स आर कमिंग एंड दे टोटली कोलैप्स. दोस पीपल टोटली कोलैप्स. और ऐसा ही कोटक के साथ हुआ. कोटक वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड द डिजिटल. मगर उनको ये था, भाई दे वर इन कंफर्ट जोन. दे वर थिंकिंग व्हेन आवर प्रोडक्ट इज सेलिंग we are getting some profit is there, why to change. They never change, and ultimately the company totally, what happened about the company. So in brief, red ocean, there is a intense competition, many companies betting, market share keep shrinking, price war and constant promotion, and hard to differentiate. जो आपकी प्रोडक्ट है वो जैसे पानी की बोतलें हैं, मोबाइल है, स्टैंडर्डाइजेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में. सब चीजें अलग अलग है. आप थोड़ा बहुत उस पर लिपस्टिक बिंदी लगा रहे हो और चीजों को, बाकी लोग सब समझदार हैं, भाई ये प्रोडक्ट सेम है, व्हाई नॉट टू गो फॉर चीपर थिंग. they bargain with you. And the third is, there is a then what happens, there is a limited growth. आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हो जो जो आपके लोग हैं. आप नई मार्केट में नहीं जा रहे. जैसे मैंने एग्जांपल दी, वो सेम पॉन्ड में आप जा रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, लहू लहूहान हो रही हो, ब्लड बात हो रहा है. आपका बिजनेस की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, या बहुत इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो रही है, बहुत कम ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल नहीं हो रही. खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं. So this is what happened. Now let us talk about four characteristics of red ocean. Red ocean के main characteristics क्या है वो मैं आपको अभी I am going to share with you. Number one is market boundaries are fixed. What is market boundary? Industries operate within established predictable rules. उनके rules सबके वही हैं that define product, customers and competitive behavior. Telecom providers, जैसे वो टेलीकॉम के वो आपके जो डिफरेंट टाइप के उनको महीने के मंथली आपको पैकेजेस दिए हुए हैं, सबके सेम है ना. अब यू आर मूविंग इन द सेम बाउंड्री, आपकी वही मार्केट बाउंड्री है. देन द सेकंड थिंग इज द डिमांड. द ग्रोथ इज कंसिडर्ड बिकॉज फर्म्स compete फॉर द सेम फाइनाइट कस्टमर. वही कस्टमर है, आपका पेप्सी है, कोका कोला है.
अगर आपकी 10,000 बोतल बिक रही है, तो अगर आपने 1,000 बोतलें उनका आपने किसी तरीके से ले लिया मार्केट से, तो वो उसका 9,000 उसका कम हो जाएगा जो है, बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद ईच अदर ओनली। आपकी डिमांड कोई नई नहीं क्रिएट कर रहे, आपकी डिमांड वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप उसी में से ही डिमांड ले रहे हो। देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंपटीशन? कंपटीटर डिफरेंशिएट थ्रू फेमिलियर लेवल्स सच एज, वो क्या है बेसिस ऑफ कंपटीशन उनका? वो आपका प्राइस पे वो गेम खेलते हैं, फीचर्स पे गेम खेलते हैं, प्रमोशन देते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड जैसे है, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम सब कुछ, कोई नई चीज तो है नहीं ना उसमें, देर इज नथिंग न्यू थिंग। देन द नेक्स्ट आइटम इज इन रेड ओशन द मेन करेक्टरिस्टिक जो और भी है, स्ट्रेटेजिक लॉजिक। ऑर्गेनाइजेशन परसू इंक्रीमेंटल गेन बाय आउट परफॉर्मिंग। आपका सिर्फ मुद्दा एक ही है, भाई दूसरे को हराओ, इससे compete करो, इसको हरा दो, और इसको मैं हराऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। देन आई विल हैव माई my business will increase, but that is absolutely wrong. Then value cost trade-off. So what is this value cost trade-off? Company assume they must choose between delivering superior value or reduce. हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है, वी आर जस्ट विद माइंड सेट। अगर मैं मान लिया रेस्टोरेंट चलाता हूँ, तो अगर मैं थाली 500, जो डीलक्स थाली जो है वो 500 रुपए की बेचूंगा, और उसमें मुझे अच्छा मटेरियल, रॉ मटेरियल लगाता हूँ। अगर मैं 100 रुपए की बेचता हूँ, 200 की बेचता हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल हल्का लगाना पड़ेगा, तभी मैं, तो जो है ना, इफ तो तभी मेरी जो कॉस्ट मीट होएगी मेरी, ठीक है? क्योंकि दिस इज अ रॉन्ग इन रेड ओशन। क्योंकि वैल्यू कॉस्ट डेटा मीन you want to increase more value, you think my cost will also go up. In that process you don't do it, आप उसमें दूर रहते हो उससे। then what are the competitive weapons? Competition relies easily replicable tactics like डिस्काउंट देते हो आप, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हो, फीचर ट्वीक करते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो, है जी, इस तरह की चीजें आप क्रिएट करते हो, तब जाके आप रेड ओशन में। देन व्हाट आर द परफॉर्मेंस प्रोफाइल? देयर आर 7 things industries coverage toward look alike offering, driving margin erosion and limiting innovation। जैसे आपने देखा परफॉर्मेंस प्रोफाइल, आपने कोई चीज खरीदी, यार लोग कहते हैं यार मैं क्या खरीद रहा हूँ, मैं तो स्टील खरीद रहा हूँ ना, वो स्टील भी ऐसा ही है, वो भी मैंने कंपनी से क्या लेना देना है, स्टील इज स्टील, सीमेंट इज सीमेंट। तो पीपल आर नॉट बॉदर्ड, बिकॉज आपकी कोई ब्रांड तो है नहीं। अगर और लोग उस पे जाते हैं, प्राइस पे जाते हैं, पीपल गो ऑन प्राइस, पीपल डोंट केयर फॉर व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग। तो लोगों को फंक्शन सबके वही हैं, जो भी चीज प्रोड्यूस करो। दिस इज व्हाट द परफॉर्मेंस प्रोफाइल इज। So this is in short, I have made it. I have, if anybody has any doubt, you can ask us. This is a market boundaries. Second, demand, basis of competition, logistic, value, cost trade-off, competitive weapon, performance, shrinking margin, limited margin. Then key इसकी disadvantage क्या क्या है? Competitive red advantage. Let us understand what are the disadvantages of ऑफ दिस रेड ओशन। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? आप समझोगे, पहली बात तो ये है कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है डे बाई डे, है, मार्जिन, माई मार्जिन इज ग्रोइंग डे बाई डे। उसके बाद क्या है? क्योंकि एवरीबॉडी कीप्स मेकिंग देयर प्राइस लो। हर एक आदमी ये रेड ओशन में क्या करता है, चीजें एक जैसी हैं, सब दुकानें खूब हैं, वहां पे एक जैसी दुकानें हैं, दे अर्न वेरी लिटिल मनी एंड कैन नॉट सेव फॉर न्यू आइडिया। उनके लिए R&D के लिए कोई पैसा ही नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे हैं और दुकान अपनी चला रहे हैं। और सेकंड कॉस्ट इज हाई कॉस्ट टू गेट। उसका रिजल्ट ये है, जब सेम चीजें हैं, स्विचिंग इज वेरी इजी। कोई भी कस्टमर आपसे कभी भी स्विच ओवर कर सकता है, और उसके बाद आपको नया कस्टमर लाने के लिए आपकी कॉस्ट बड़ी हाई है। एज यू नो, 7 times you have to spend more on advertisement and other things to get new customer. Then you are in a commodity trap. Every shop sells almost same. commodity trap का क्या मतलब? हर दुकान के पास, अगर एक परफ्यूम की दुकान है, सबके पास वही माल पड़ा है, वही चीजें पड़ी हैं, कोई नई चीज तो है नहीं, ऑलमोस्ट सेम थिंग। वन शॉप एड समथिंग, अदर ऑल्सो, आपने कोई चीज ऐड भी कर दी, दूसरा फटाफट उसको कॉपी करता है और उसको वो सामान ले आता है, उसी रेट पे बेचना शुरू कर देता है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज
आर्म रेस. व्हाट इज आर्म रेस? एवरीवन कीप स्पेंडिंग मोर एंड मोर. आप जैसे दोनों आर्म रेस, जैसे दोनों आपस में वो लड़ते हैं, वो वो जो है वो पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है तो मैं भी पैसा ज्यादा खर्च. उसकी दुकान 7 की बजाय 8 बजे बंद होती है तो मैं भी 8 बजे बंद करूंगा, मैं 8:30 बंद करूंगा. दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन द मार्केट, यू नो. दिस इज व्हाट इट इज. देन देन द नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट शॉर्ट साइड जो फायदा देखते हैं, strategic myopia. Everyone only looks at what the other shops are doing. No one thinks of new game, new customer, no so new clever shop, no clever shop can surprise them. और कोई भी दुकान आके उनका जो है ना, उनको सरप्राइज कर सकती है, उनका बिजनेस फेल कर सकती है. उसका क्या रिजल्ट होगा इन सारी चीजों में? विल बी टेंशन, देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दिस थिंग, है ना. और उसका रिजल्ट इनसाइड द शॉप एवरीवन इज स्केर्ड, क्योंकि लोगों को पता है यार ये हमारा जो लाला है इसका प्रॉफिट दिन पर दिन कम हो रहा है ना, ये आगे हमें बोनस भी नहीं देता, आगे दिवाली पे गिफ्ट देता था, अब ये सब कुछ बंद कर देगा क्योंकि आपका मार्जिन बहुत कम हो रहा है, आपको पता लग रहा है. दिस इज हाउ द स्ट्रेस इज. सारा सारा सिस्टम जो एनवायरनमेंट है आपका स्ट्रेसफुल हो जाता है. दिस इज व्हाट हैपन. और उसके बावजूद, ये सारी चीजें हमें पता होने के बावजूद, हम क्यों एंटर करते हैं रेड ओशन में? वाई वी एंटर रेड ओशन? व्हाट आर के इसमें क्या चीजें हैं जो हम रेड ओशन फिर भी हम एंटर करते हैं? आ बैल मुझे मार, क्यों? द मेन रीजन इज एग्जिस्टिंग डिमांड इज इजी टू से. मेरे को ना हर चीज बड़ी आसान लगती है. मैं सामने में देखता हूँ एक रेलवे स्टेशन पे, देर इज वन टी शॉप इज देयर एट द रेलवे स्टेशन, लॉट ऑफ पीपल आर देयर टेकिंग टी. आई एम टोटली अल्योर्ड, आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट. मैं सोचता हूँ यार मैं भी चाय की दुकान एक और साथ लगा लूं, मगर मुझे ये नहीं पता आदमी वही है, सब कुछ वही है, वो उसके आधे आदमी बढ़ जाएंगे जो आप कह रहे हो, जो आप अगर आप वही लगा लेते हो दुकान उसकी, बिकॉज द पीपल आर सेम, सेम जेंट्री. दूसरा वो और क्या कि इजी टू कॉपी अदर्स. वो मैं क्यों लगाना, मैं रेड ओशन से क्यों नहीं निकलना चाहता? क्योंकि मुझे पता है चाय बनाना, काफी बनाना, ये चीज बेचना मुझे पता बड़ा आसान है. चाय की पत्ती ला लो, ये बिस्कुट ले आओ साथ में, ये इट इज वेरी इजी ना. ये सब चीजें मुझे कोई इनोवेशन तो करनी नहीं पड़ती. इसलिए मैं कहता हूँ यार मैं भी खड़ा हो जाता हूँ लाइन में. ये सारे लाइन में खड़े हैं, मैं भी तो पीछे खड़ा हो जाऊँ लाइन में. आई शुड स्टैंड. देन बिग प्लेयर्स में मेरे दिमाग में आता है यार बड़े बड़े आदमी जो है ये तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बिग प्लेयर. हाँ. सो देन सॉरी, वन बिफोर इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द गेम. इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर वो है जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो या बैंक वाले जो हैं, जो आपको हेल्प करते हैं ना, वो आपको ही हेल्प करेंगे जो रेड ओशन वाले हैं. कारण वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते. दे से वी अंडरस्टैंड दैट ही इज मेकिंग ए टी स्टार टी, ही विल सेल इट एंड ही विल रिटर्न आवर मनी. Supposing you tell him some new thing, new venture which is not in market, so they don't want to take risk. That is also one thing. People want to enter red ocean. Then the next point is economic of scale can be lucrative. Economic scale क्या होता है? अगर आप किसी चीज को, एक आपको 100 चीजें बना रहे हो, 1000 चीजें बनाओ, आपके फिक्स एक्सपेंसेस जो है दे विल रिड्यूस. दिस इज व्हाट आई थिंक इन रेड ओशन. मैं यार माल बहुत सारा बनाना शुरू कर दूंगा. I will increase lot of items so that my fixed expenses will come down and my per unit cost will go down and my profit margin will go up. There are two things we always say, economic of scale and economic of scope. Scope ये होता है अगर मान लिया आपने कोई चीज बनाई, आपने एक लैपटॉप की कंपनी बना दी, आपके कस्टमर जो है फिक्स है, यू नो योर कस्टमर, बट आप उसमें एक चीज और प्रिंटर ऐड कर देते हो, है जी. और प्रिंटर ऐड करने से आपका काम बढ़ जाएगा. इकोनॉमिक ऑफ स्कोप हो गया, बिकॉज आपने ऐड किया उसी जगह में, आपके कस्टमर आपको पता ही है. देन यू विल, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफ स्कोप. दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. देन द नेक्स्ट थिंग इज हार्ड वर्क कैन विन. मैं सोचता हूँ यार मैं तो बड़ा मेहनती आदमी हूँ और मैं है, मुझे आइडिया वाइडिया से कोई लेना देना नहीं है. आई एम वर्किंग सो हार्ड और मैं तो बिल्कुल ऑपरेशनल अपनी ऐसे कर दूंगा, एक्सेलेंट, बड़ा फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइज कर दूंगा, हर चीज को ऑर्गेनाइज कर दूंगा, और उसका मुझे ये फायदा पहुंचेगा कि मेरी कंपनी दौड़ेगी फटाफट, कि मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ, मैं बड़ा मेहनती आदमी हूँ. देन व्हाई वी एंटर रेड ओशन? दिस इज ऑल इज समरी. बिकॉज विजिबल डिमांड इज देयर, easy to copy, investor comfort is there, the skill match is there,
सबके पास स्किल है, सबके पास वही इंस्ट्रूमेंट है, सब चीजें हैं, कोई आप नए नहीं हो वाकई में. एंड देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड इजी टू कॉपी. डिस्पाइट द पेन आई एम कंटिन्यू रेड ओशन. हाँ जी. देन व्हाई रॉक द बोट. मैं ये एक चीज और है, मैं आराम से जा रहा हूँ, एक किश्ती में जा रहा हूँ. कोई आदमी अगर आपने देखा है, कोई खड़ा हो जाता है, देन द बोट स्टार्ट स्टम्बलिंग, देन वी से सिट डाउन, डोंट डू इट, जस्ट लेट अस सिट. और कोई आदमी शिफ्ट भी करता है अपनी पोजीशन, अगेन द बोट स्टार्ट. दिस इज व्हाट हैपन इन रेड ओशन. We don't permit anyone. We just try to be comfortable, though we are going in a very slow, in a speed. We don't see the challenge coming in front of us. Still, we continue. This is why it is called why rock the boat. और उसमें आपको निकलना कैसे है, हाउ यू कम आउट ऑफ दिस, है ना. उसमें जो कम्युनिटी ट्रैप है, आपको इनोवेट होना पड़ेगा, आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी. आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन सब्सिक्वेंट स्लाइड. आपको यूनिक डिफरेंशिएशन होना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा. यू विल हैव टू मेक ए बिल्ड ब्रांड एंड देन यू हैव टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस. आपको अपना कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब है, जो आपके पास आएगा सामान लेने, वो वाउ का फैक्टर लेके जाएगा. ही विल बी, when he will travel your customer journey, there should be no pain point. He will say, वाह मजा आ गया, ये इनके पास गए थे. Then what are the core characteristics? Similarly, as I explained in Red Ocean, what are the core characteristics? इसमें बिल्कुल different है. What are the market boundaries? The first principle of Blue Ocean study is to reconstruct. मैं उसी ओशन में नहीं जाऊंगा जिसमें लोग जा रहे हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज आई विल रिकंस्ट्रक्टेड. मैं अपनी मार्केट को खुद बनाऊंगा. एंड आई विल ब्रेक फ्रॉम कंपटीशन टू क्रिएट. मैं कंपटीशन किसी के साथ नहीं करूंगा और मैं अपनी मार्केट को बनाऊंगा. सेकंड इज मैं अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करूंगा, मैं उसको अनलॉक करूंगा. देयर आर सो मेनी कस्टमर, वी कॉल देम, आई विल एक्सप्लेन लेटर स्लाइड. देयर आर नॉन कस्टमर. मैं वो ढूंढूंगा कौन कौन से नॉन कस्टमर हैं, मैं उनको पकड़ के लाऊंगा, नॉन कस्टमर को, उनको एग्जामिन करूंगा, एनालिसिस करूंगा. भाई आप क्यों नहीं लेते मेरा सामान. उनको, मैं जो ऑलरेडी कस्टमर है उनके पीछे नहीं भागूंगा, उनके पीछे compete नहीं करूंगा. जो नॉन कस्टमर है, जो लोग अभी आए नहीं है इस सामान को लेने, उनको मैं अपना ल्योर करूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा. देन कंपटीशन इररेलेवेंट कर दूंगा. मैं, यू आर नॉट फाइटिंग एग्जिस्टिंग प्लेयर, यू आर अट्रैक्टिंग. मैं जब नए जो है बायर को मैं करूंगा, मैं उनके साथ, मेरा कंपटीशन ही खत्म हो गया. फिर काहे का कंपटीशन है. मैं जो आपका एरिया है, जो आपके कस्टमर हैं, मैं उनके पीछे दौड़ नहीं रहा. आई एम नॉट चेजिंग देम. then that means the customer, there is no competition, it becomes irrelevant totally. Then what are the strategy? Strategy, you are different. स्ट्रेटेजी ये है, मैं आपका उसमें तो ये है आपको हराना है, मैं हराऊंगा नहीं. यू आर डिफरेंट एंड चीपर. यू आर नॉट बेटर बट डिफरेंट. आप बेटर नहीं हो, यू डोंट बिकम बेटर, यू बिकम टोटली डिफरेंट एंड यूनिक. मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट बाय क्रिएटिंग ए लीड वैल्यू. The fifth is value cost trade off. ये क्या चीज है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू कॉस्ट. उसमें तो ये था, आप जैसे ही आप कॉस्ट बढ़ाते हो, वैल्यू वैल्यू आप ज्यादा देते हो, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है. इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू आपको ज्यादा दूंगा और मेरी कॉस्ट का मतलब है जो मैं चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वो कॉस्ट वो कम हो जाएगी. कैसे होएगी. मैं मान लिया, मैं आपको होटल में एक आपको डीलक्स थाली मिल रही है, 1000 रुपए की थाली मिल रही है डीलक्स थाली, और एक आपको जनता थाली मिल रही है, 200 रुपए की जनता थाली मिल रही है. तो मैं दोनों को देखूंगा बेस्ट वैल्यू किसमें है, और चीप चीप और जो चीप रेट में, दोनों की अच्छाइयों को मैं ढूंढूंगा. मैं क्या करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, जनाब उसमें तो 7 आइटमें हैं और 2 स्वीट डिश हैं, क्या 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 आपको जरूरत है. कस्टमर में से, भाई शुड आई है, you eliminate यार 3 items, 4 items are more than enough. You eliminate one sweet dish. That is, we ERRC model है एक, we will come later on next slide. ERC means what can I eliminate, what can I reduce, what can I raise. मैं आपका रेज क्या करूंगा, आपकी इमोशनल हैप्पीनेस हो जाएगी, यार ये तो 1000 की जगह अब अच्छी थाली 400 रुपए की मिल गई मुझे, है ना. एंड व्हाट कैन आई क्रिएट,
What can I create a new thing? That apply, I will apply that principle. उससे मेरी वैल्यू तो बढ़ जाएगी आपकी, और कॉस्ट कम हो जाएगी, और दोनों चीजें जो मुझे चाहिए वो रेड ओशन से निकल के मैं ब्लू ओशन में आ जाऊंगा. Then the next item is innovation type. Business model delivers experience utility, not just product. मैं नई नई चीजें जो है मैं आपको करूंगा. और परफॉर्मेंस प्रोफाइल क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड अर्ली प्रॉफिटेबिलिटी. कस्टमर की लॉयल्टी को मैं ढूंढूंगा ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेट एंड परसीव्ड यूनिकनेस को मैं करूंगा. स्ट्रॉन्ग अर्ली प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर लॉयल्टी मेरी बढ़ जाएगी. उससे मेरी परफॉर्मेंस जो प्रोफाइल है वो बेटर हो जाएगी, बिकॉज आई विल बी अटैच टू दी, दे विल नॉट स्विच ओवर सो इजीली. So this is in short. So market boundary I have told, demand creation I have told, core credibility, competitive irrelevance, strategic logic, value cost trade-off, innovation and performance. Then what are the advantages? इसकी क्या advantage है जो मैं blue ocean कह रहा हूँ, और इस जो मॉडल में what are the key advantages of this model? So number one is no head-to-head competition. इसमें मेरा कंपटीशन है ही नहीं है. यू आर नॉट बैटलिंग फॉर द मार्केट शेयर ना, यू आर क्रिएटिंग न्यू मार्केट. सो प्राइस प्रेशर, जब मैं नई जगह गया, नई मार्केट गया, मैं वहां फिश पकड़ने गया था, कोई मेरा कंपटीटर था ही नहीं. ऐसे ही मेरी जो मार्केट नई होएगी तो मैं अपना रेट खुद तय करूंगा, मैं लोगों से कंपेयर नहीं करूंगा, और मेरा जो प्रॉफिट होगा इट विल बी बेटर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट मार्जिन होगा मेरा. तो इसी कारण, बिकॉज मैं यूनिक चीज को ऑफर कर रहा हूँ, और मैं उस कंपटीशन को फेस ही नहीं कर रहा, और प्रीमियम प्राइस अपनी चार्ज करूंगा. देन आई विल गेट लॉयल एंड एंगेज कस्टमर. मैं उसमें से मेरे जो कस्टमर होंगे वो इमोशनली मेरे साथ ज्यादा अटैच होंगे, बिकॉज मैं उनको सर्व बेटर कर रहा हूँ. आई एम मोर लॉयल, मोर एंगेज. देन नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी एंड डिफरेंशिएशन. योर बिजनेस स्टैंड आउट विद ए क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन. वैल्यू प्रोपोजिशन क्या चीज है? स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी एंड डिफरेंशिएशन. जो आप प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हो, बेटर बनाते हो, उसमें वैल्यू ज्यादा क्रिएट करते हो, दिस इज व्हाट इट इज है. एंड रूम फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. और इसलिए मेरे जो कंपटीटर नहीं है, मैं अकेला हूं, तो आई कैन इंक्रीज माई बिजनेस, आई कैन एनहांस माई बिजनेस, और मेरी जो है लॉन्ग टर्म ब्रांड एक्विटी बढ़ जाएगी. फर्स्ट मूवर, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं ही आया ना उस बिजनेस में, और मैं जब आऊंगा, जब तक लोग मुझे आके कॉपी करेंगे टाइम लगेगा, तब तक आई विल बी फार अहेड इन दैट माई गोल. मैं बहुत आगे तरक्की कर चुका हूँ. दिस इज व्हाट इट इज, की एडवांटेजेस ऑफ ब्लू ओशन. अब ऐसे हैं, ये कुछ टूल्स हैं. देर आर सर्टेन टूल्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड टू अनकंटेस्टेड मार्केट. में क्या क्या टूल है, क्या क्या चीजें हैं, वो मैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल द टूल्स आर, वी यूज इट ऑल्सो. They are very, very interesting. So number one, the tool, first I will tell the number and then one by one I'll explain. The first tool is strategic Canva and value curve. Okay. The second tool is 4 action framework. ये obviously मैंने अभी बताया आपको. I will explain you more. And the third tool is 6 path framework. एक path पे नहीं जा रहा, 6 path है, 6 path framework. Then buyer utility map क्या होता है? You are going to listen very short. So then 3 tiers, non-cluster, non-customers. What are 3 तरह के non-customer? अभी मैंने जिक्र भी किया था. 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? I am going to tell you. 3 तरह के, एक तो कस्टमर होते हैं जिनके पीछे आप भाग रहे हो. एक ऐसे कस्टमर है जो आपको पता ही नहीं है, वो नॉन कस्टमर है, अभी आपके उसमें आए नहीं है उससे. देन प्राइस कॉरिडोर. प्राइस कैसे आप फिक्स करोगे किसी प्रोडक्ट का, उसको आप देखना है आपका. डोंट कॉपी कैट अदर पीपल, you fix your own price, try to see कहाँ डिमांड है. then what is blue ocean index? क्या चीज है? you will be told. pioneer magnet settlers क्या चीज है? so sequence of blue ocean strategy. now I'm going to take one by one. I'll first start with strategy, Canva and value curve. ये देखिए, ये कर्व ड्रा की, ठीक है. कोई एयरलाइंस है, उसमें it has its own, speed is one element. Then people sitting arrangement is one element. Food is one element. Then
your service in the airlines is one element. There are so many things are there. You just note down all those things which are already existing the product और सर्विसेज. जो जो चीजें प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं आप उसमें नोट करें और उसको क्वांटिफाई करें इन द मार्क्स ऑफ 1 to 5. उसमें क्वांटिफाई करो. जैसे आप कोई चीज में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहां पे आपने देखा, किसी होटल में गए, वहां पे फूड की क्वालिटी क्या है, आपने नंबर दे दिए 4/5. देन यू गो देयर, व्हाट इज द लॉन्च फैसिलिटी, व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट, व्हाट इज दिस, क्या पर्पज था आपका, किस लिए गए, एंड व्हाट इज द प्राइस रेंज, क्या है आपका, है ना. फिर आपका किस स्पीड से वो रेस्टोरेंट, हाउ एफिशिएंट दे आर टू सर्व यू, ये सारी चीजें हम नोट करें. व्हेन यू नोट डाउन ऑल दिस थिंग, आप अपनी कर्व तैयार करें. कोई बिजनेस तैयार करना है, यू आर फॉर्मुलेटिंग, यू आर इमेजिनिंग, यू आर मेकिंग योर ब्लू प्रिंट. आप ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे हो जो जो तैयार करना है. आप कहोगे यार फूड है, तो मैं ये फूड की जगह मैं हटा सकता हूँ. अगर मेरी एयरलाइन है तो पीपल विल बी हैप्पी टू इफ आई रिड्यूस द प्राइस. मैं जो जो लॉन्च फैसिलिटी है उसको मैं खत्म कर दूं, है ना. और मैनी एयरलाइन दे हैव डन इट. ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस है यूएसए में, वो उन्होंने रिड्यूस कम कर दिया और उनका रेट आधा है बाकी एयरलाइंस. और मैं जो प्राइस पे ये जोर दूंगा और मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा अपनी. मैं पॉइंट टू पॉइंट करूंगा. मैं ऐसे नहीं करूंगा यहाँ से हैदराबाद जा रहा था रास्ते में स्टॉप ओवर नहीं करूंगा. मैं जाके सीधा ऐसा डिजाइन करूंगा ताकि सीधा मेरी एयरलाइन सीधा वहां पहुंचे पॉइंट टू पॉइंट, सो दैट नो टाइम इज वेस्टेड इन फ्यूलिंग एंड अदर चार्जेस फॉर पार्किंग एंड अदर थिंग. और मेरी स्पीड बढ़ा दूंगा. और मैं जो लोग आएंगे उसको क्विकली अंदर भेजूंगा, आधे घंटे 15 मिनट में सबको चेक इन कराऊंगा. दीज आर द थिंग आई एम फोकसिंग. एंड और उसने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये इंडिगो फ्लाइट है और उनका एक मॉडल है. उन्होंने पहले मोस्ट ऑफ द मेल, यू नो, स्टीवर्ड, व्हाट यू कॉल इट, एयर hostesses, they were there and they thought how can we save money. उन्होंने they replaced it with women staff, you know, except pilot, they all replaced by women staff because the women, they, और पतली पतली लड़कियां उन्होंने देखी because their weight is less. Whatever weight they save, they utilize it for extra baggage. उनके उनको पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं. दे इंक्रीज देयर रेवेन्यू. दिस इज द प्रोसेस, यू नो, दिस इज स्टडी कर. इसी तरीके से लोग आजकल शादी ब्याह भी करते हैं. एक लड़का लंबा है, गोरा है ना, मगर वो शराब शरूब खूब पीता है और सारी अनएथिकल है, सो चीजें हैं. और दूसरा एक बिजनेसमैन है, बड़ा सिंपल है, अच्छी उसकी इतनी अच्छी शक्ल नहीं है, मगर वो एथिकल बड़ा है, वो और चीजों में है. देन पीपल वेट ऑल दिस थिंग, दे ड्रा द कर्व एंड अल्टीमेटली दे चूज, यार वो बिजनेसमैन ही अच्छा है, कम से कम एथिकल तो है ना, शरीफ आदमी है ना, उसको रहने दो. जो वो सुंदर है, बहुत है, गोरा चिट्टा है, उसको छोड़िए. आप इस पे चलिए, आप इस पे. People use this thing. And then what are 6 path framework? कोई भी चीज आपको जब कंसीव करनी है, कोई चीज आपको करनी है, there are 6 ways, there are 6 paths. I will explain one by one. The first path क्या है? देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, मालिक हैं, वो their meetings are, you know, very very frequent. They are so frequent, they have to, in at a very short notice they have to go. उनके लिए दो ही चीजें हैं, या तो वो कमर्शियल एयरलाइन में बैठे, है ना, एंड दे स्पेंड द टिकट फॉर बिजनेस क्लास और इफ अवेलेबल नॉट द ऑर्डिनरी क्लास, समथिंग लाइक दिस. और दे दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, दे बाई फॉर द कंपनी देयर ओन जेट, अपना ही खरीद लें जेट. और उसमें क्या होगा, दे विल हैव टू एंकर ह्यूज एक्सपेंसेस बट दे विल बिकम वेरी एफिशिएंट. ठीक है. लुक अक्रॉस अल्टरनेट इंडस्ट्रीज पे उन्होंने क्या सोचा, एक नई कंपनी क्रिएट हुई, नेटजेट. दे टोल्ड यू शेयर विद अस, आपके जो सीईओ जाते हैं, वी विल इंश्योर यू बोथ द फैसिलिटीज, व्हाट, यू नो, लग्जरी बिजनेस क्लास गिव्स एंड व्हाट दिस जेट आल्सो गिव्स इंडिपेंडेंटली. हम आपको 4 घंटे के नोटिस में आपको सर्व करेंगे. यू डोंट हैव टू बाई द जेट इंडिपेंडेंटली. आप उसमें शेयर ले लो. वो लोग 1/16, 1/32 शेयर ले लेते हैं उसमें, उस जेट में. And they do this company, you know, this company jetlet, they arrange everything for you. वो आपके लिए, आपने सीईओ ने 4 शाम को मीटिंग में जाना है, 12 बजे उसने फोन किया, वो आके
दूसरा फायदा ये है, इवन छोटे छोटे जो है ना वो एयरपोर्ट्स, उनमें भी वो आके खड़े होते हैं, एंड यू सेव लॉट ऑफ मनी एंड दे टेक यू एंड टू एंड सर्विस। वो आपको वहीं ले जाएंगे जहां आपकी मीटिंग है, उसके बिल्कुल नजदीक का एयरपोर्ट है। दे टेक यू। व्हाट आई वांट टू से, so you have to look, these type of options. So you either this option or the or mix together, और दोनों की जो अच्छाई चीजें हैं, अच्छी चीजें दोनों की सोचो और उनको चूज करो। देन द सेकंड पार्ट, लुक अक्रॉस स्टडी ग्रुप्स। वो क्या है? मिक्स हाई एंड लो। आप खाना खाने जाना चाहते हैं, देर इज वन फैंसी रेस्टोरेंट, उसमें बहुत महंगा है, देर इज ए वेर एंड बट वो 5 स्टार की तरह ट्रीटमेंट करते हैं आपको। देर इज ए बजट रेस्टोरेंट, दिस इज व्हाट इट डज एंड व्हाट यू कैन डू इट। आपने कोई चीज क्रिएट कर रही है, आप दोनों की अच्छी चीजें ले लो, ठीक है। आप उसमें कुछ चीज इसमें लो, कुछ इसमें कॉस्ट इसकी लो, इन बिटवीन कोई मॉडल तैयार कर दो एंड स्टार्ट द बिजनेस, एंड इट विल रन। उसमें आपका जो लग्जरी क्लास की बजाय इवन मिडिल क्लास पीपल विल स्टार्ट कमिंग, एंड यू विल गेट योर बिजनेस रोलिंग, लाइक दिस रॉक। दिस लुक अक्रॉस चेन ऑफ बायर्स। 3 तरह के बायर होते हैं। एक तो बायर होता है जो कोई भी चीज आप खरीदो उसको यूज करता है, एक कोई भी चीज को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। वन इज इन्फ्लुएंसर, अदर इज बायर, थर्ड इज परचेजर, यूजर। यूजर, इन्फ्लुएंस एंड परचेजर। जैसे आपने कोई स्टेशनरी की कोई चीज खरीदी, बुक खरीदी, स्कूल में प्रिस्क्राइब हुई, दे कुड बी इन्फ्लुएंसर। आपकी जो मम्मी है वो परचेजर है, वो पैसे खर्च कर रही है, और आप यूजर कौन होगा? वो जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो यूज करता है। इसीलिए ये ये जो इंसुलिन लगाने का आया, जो कंपनी ने क्या किया, पहले वो डॉक्टरों को डायरेक्ट अप्रोच करते थे, दे नेवर न्यू, दे ओनली न्यू भाई डॉक्टरों को ही अप्रोच किया जा सकता है। देन दे क्रिएटेड, डायरेक्ट यूजर्स को उन्होंने अप्रोच किया जिनको इंजेक्शन लगता था, बिकॉज देर आर 3 टाइप ऑफ पीपल, परचेजर आर डिफरेंट, यूजर आर डिफरेंट, इन्फ्लुएंसर यू टारगेट। किसको आप टारगेट करो ये आप पे है, आपने देखना है किसको टारगेट किया जाए जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है बेटर हो जाए। एंड थर्ड इज थिंक बिफोर एंड आफ्टर। फोर्थ, लुक अक्रॉस कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। ये एक बस की सेल लोग खरीदी इसने, बट बिफोर दैट एवरीथिंग दे डिड इट, एवरी सर्विस एवरीथिंग, बट उसका ये रिजल्ट आया, ये जो बस थी, इट वाज हैविंग लॉट ऑफ मेंटेनेंस। कंपनी ने क्या किया, वो लोहे की बस थी, उसको चेंज कर दिया हाई 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 ब्रांड प्लास्टिक में, और उसकी जो सर्विस का रेट था, जो एफिशिएंसी थी, और उसका जो फ्यूल का एक्सपेंसेस था, वो कम हो गया। एंड आफ्टर दैट आल्सो दे इंश्योर्ड फॉर सो मेनी ईयर। सिमिलरली, ये जो बैटरीज आ रही है, जो ईवी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इसकी जो बैटरीज है, इनको 15 साल की वारंटी दे रहे हैं आजकल, जितनी आ रही है आजकल नई बैटरीज आ रही है, सो दैट यू, जो आप खरीदने से पहले क्या सोच रहे और खरीदने के बाद भी, तभी आपको कस्टमर मिलेगा। दिस इज व्हाट द ब्लू ओशन, दे अंडरस्टैंड, दे डू इट, यू कंसीव लाइक दिस, है ना। फिर आपको खाली फंक्शनल नहीं सोचने का, आपको यू हैव टू आल्सो थिंक इमोशनली आल्सो। यू डोंट थिंक ऑफ फंक्शनली एंड थिंक, यू वांट टू लॉन्च ए वॉच, यू थिंक यार मेक ए ब्यूटीफुल वॉच सो द पीपल आर हैप्पी, है। आपने कोई भी चीज बनाई है तो वो उसकी खूबसूरती भी होनी चाहिए, दैट गिव्स यू इमोशनल वैल्यू also. Same thing, like same. आपने एक functional value of the car is, just to travel, and this is the emotional value. The couple, the model change कर दिया इसने. They are doing now. You also create these things, है ना, and look across functional and little emotional touch you are giving in everything. Then the sixth is, so spot about future trends. आपने नेटफ्लिक्स सुना है? नेटफ्लिक्स का शिफ्टेड, पहले डीवीडी होते थे, वो रेंटल मिला करते थे, और नेटफ्लिक्स ने क्या किया, उसने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। बाय एम्ब्रेसिंग डिजिटल डिलीवरी, इट डायरेक्टेड एंटरटेनमेंट, और उसमें टोटली चेंज कर दिया। आपको भी जो आपकी प्रोडक्ट है ना, वो आपको आगे के लिए सोच रहा है, फ्यूचर जनरेशन 10 साल बाद, 5 साल बाद फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे, एंड ट्राई टू अडॉप्ट इट, बी फ्लेक्सिबल, उसमें आप सोचें उसको। देन द नेक्स्ट फ्रेमवर्क इज, बट इट वाज, ये 6 के बाद मैंने आपको पहले बताया था 4 एक्शन फ्रेमवर्क, ERC मॉडल। कोई भी आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज देनी है, अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स यू कैन एलिमिनेट,
व्हाट आर द थिंग्स, कोई भी प्रोडक्ट है क्या, हर चीज जरूरी नहीं है देनी जो बाकी दे रहे हैं. यू कैन एलिमिनेट सो मेनी थिंग्स, यू कैन declutter so many things, and what are the things you can reduce it, and what are the things you can create, and what are the things you can raise. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी सर्कस की, उन्होंने एनिमल्स को हटा दिया, स्टार परफॉर्मर्स को हटा दिया, जो कॉमेडी वाले थे दूसरे उनको कम कर दिया, और क्रिएट क्या किया, स्टोरी, स्टोरी क्रिएट की, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने वाले आए, थीम, आर्टिस्ट्री को इंक्रीज कर दिया, और कंफर्ट को इंक्रीज कर दिया, म्यूजिक सिस्टम को इंक्रीज कर दिया. दिस इज हाउ यू कैन चेंज, you can change and conceive the thing. So then the next point is buyer utility map. What is buyer utility map? आप एक कैब को करते हो आजकल, ये जो उबर है, ये ओला है, पहले क्या होता था, पुरानी गाड़ियां होती थी, पहले तो आपको फोन नहीं मिलता था, है ना, तो आप ढूंढते रहते थे, टैक्सी ढूंढते रहते थे, और ड्राइवर इतना, वो कपड़े अच्छे नहीं होते थे, रूड होते थे, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट एवरीथिंग. पैसे वापस होते थे तो पैसे वो चेंज करते थे, है नहीं जी, वी डोंट हैव चेंज, एंड और कोई रिसीट आपको नहीं देते थे, और कांट कंप्लेन. और उसके बाद क्या चेंज आया, उसके बाद ये जो नए ओला आए, और एप्लीकेशन आ गई, विद नो टाइम यू कैन हायर ए कार, यू कैन हायर ओला और एनी एनी टाइप ऑफ व्हीकल. देन उसमें फिर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, और रेट उसके आपको पता लगते रहते हैं, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन चीट यू. Then there is a digital receipt. You are happy. Total transparency is there. eh? So even you don't have to beg him for cash, this, that. You just do Paytm, और हर चीज बिल्कुल आपको. This is what the things are changing now, and this is what how we are changing from red ocean. This is a red ocean. ये जो पुराने कारें होती थी, and this is a blue ocean. This is what it is happening, and there are three tiers of non-customer content. जस्ट हाउ आई वाज टेलिंग यू, क्या क्या चीजें हैं. पहला वो है जो दोज हु विल सून कंसिडर बाइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल की. मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, कुछ लोग सोचते हैं यार मैं खरीदूं ना खरीदूं, अभी सोचता हूँ, दोज हु स्टिल वांट टू. तो दूसरे लोग होते हैं वो, दोज हु रिफ्यूज टू कंसिडर इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो कहते हैं मैं नहीं खरीदता इलेक्ट्रिक व्हीकल, मुझे तो पुराने की आदत पड़ी हुई है, मैं नहीं खरीदूंगा, आई विल नेवर बाई दिस. एंड दोज हु नेवर थॉट ऑफ बाइंग, और कई बेचारों को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो ऐसी जगह पे बैठे हैं, दे डोंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट. एंड वन थिंग इज, if you launch any product, there are three types of buyer, non-buyer. So what are those? Non-customer. पहले वो जो सोचते रहते हैं, they think which are on the edge, मैं खरीदूं कि ना खरीदूं. एंड सेकंड टाइप, दो दे रिजेक्ट, यार इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या करने का, मेरे को ऐसे ये साला वहां पे मेरे को मिलेगा नहीं, रास्ते में खड़ी हो जाएगी, आई डोंट वांट टू. एंड थर्ड, उनको पता ही नहीं है भाई मार्केट में आई हुई है. यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट these people and try to meet them, and try to enhance your business. So then this is the same example. So gym is there, so somebody, there are customer, non-customer, could be इनफ्रीक्वेंट हो, कभी कभी आने वाले. दूसरे डिसलाइक करते हैं, मुझे जिम जिम से, मुझे वेट उठाने से कोई लेना देना नहीं है. दूसरे तीसरे एल्डरली पीपल है, वो बेचारे नहीं, वो नहीं कर सकते, अनएक्सप्लोर्ड है, उनके लिए भी आप कोई चीज बना सकते. यू कैन मेक समथिंग फॉर दैम. दिस इज a huge market for senior citizens also, if you love to do it. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू फिक्स प्राइस कॉरिडोर ऑफ द मैप. प्राइस कॉरिडोर का मतलब ये होता है, अगर कोई चीज आपने लॉन्च करनी है ना, कोई प्रोडक्ट आपने अगर लॉन्च करनी है, तो आप ये देखें कि उसकी प्राइस मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी. कि आप ऐसी चीज बना दो सिर्फ 1% लोगों के लिए हो, दैट इज फाइन. आपने बड़ी गाड़ी बना दी, वेरी रिच पीपल कैन अफोर्ड इट, बट एथिकल ये है कि आप वो चीज बनाओ जो कि मास लोगों को काम आ जाए. एक एक एंटरप्रेन्योर साहब थे, ये जैसे नजर आ रहे हैं, किसी गांव में गए. ही वेंट टू सम विलेज एंड ही सॉ वन मैन ऑन ए हॉर्स. उसने कहा था, बेटा तुम गाड़ी क्यों नहीं लेता. कहता, साहब हमारी किस्मत में गाड़ी, हम गाड़ी कैसे ले सकते हैं, इतनी महंगी गाड़ी है. कहता, यार तू कितने की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है अगर हो. वो कहता, जी मैं तो $800-900 से ज्यादा नहीं पे कर सकता, आपकी गाड़ियां तो $8,000 की हैं, $6,000, $7,000, आई कैन नॉट होल्ड इट. वो हॉर्स पे था. ही वेंट टू दी वर्कशॉप एंड ही यूज ERRC मॉडल. मैं कौन सी गाड़ी बनाऊं जिसमें वही चीजें रखें जो सिर्फ फंक्शनल है,
फंक्शनल चीजें मैं हटा दूं, सारी चीजें विच आर नॉट रिक्वायर्ड। मैं उसने ऐसी गाड़ी प्रोड्यूस की विच वाज $850, एंड ऑल द विलेजेस, ऑल द पीपल फ्रॉम रूरल, वो वहां से उन्होंने गाड़ी को लेना शुरू कर दिया। एंड ही इंक्रीज हिज सेल मेनी मेनी फोल्ड्स, बहुत उन्होंने परचेज शुरू कर दी। ऐसे आपने सैशे का भी एग्जांपल सुना है। लोग पहले जो बड़ी बड़ी बोतलें आती थी ना, ये इसके सिर धोने का, ये जो होता है शैम्पू, तो ये जो आता था, बड़ा बड़ा आता था शैम्पू, ये जो बेचारे मजदूर आदमी थे, दे कुड नॉट अफोर्ड, क्योंकि 400 500 की बोतल आती थी अच्छी। तो कंपनी ने छोटा सा सैशे निकाल दिया, 2 रुपए का, 1 रुपए का। वो जब निकाला, दे मिलियंस ऑफ सैशे दे स्टार्टेड, जो छोटे छोटे जो पाउच है, वो इतने ज्यादा बिकने शुरू हो गए। दिस इज कॉल्ड प्राइस कॉरिडोर ऑफ द मास। आपको सोचने का है कि क्या मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, कौन यूज करेगा। मेरे को मार्केट में मूवमेंट लानी है, मेरे को खाली लग्जरी लोगों को नहीं सेटिस्फाई करना। आई हैव टू सेटिस्फाई एवरीवन। देन देयर इज अ नेक्स्ट मॉडल इज ब्लू ओशन इंडेक्स मॉडल। सब, जब भी मैं नई प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं एक अपना नंबर दूं, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, डू दे वांट, कैन दे पे, कैन यू प्रॉफिट, विल दे एक्सेप्ट इट। क्या मैं जो आइटम बना रहा हूँ, क्या वो लोगों के काम आएगी? इज इट यूजफुल फॉर द पीपल? क्या उसकी प्राइस लोग अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो मेरे लिए कॉस्ट प्रॉफिटेबल? कॉस्ट इज ओनली फॉर दी मैन्युफैक्चरर जेंटलमैन। कॉस्ट जो भी होती है मैन्युफैक्चरर के लिए होती है ना? क्या अच्छा, तो लास्ट में क्या वो अडॉप्ट करेंगे, क्या वो यूजर फ्रेंडली होगा? अगर सारी चीजें आप चार की चार चीजें इसको ओके करते हो, उसमें नंबर दो 1 से 10 में, अगर इफ इट इज ओके, देन दैट योर प्रोडक्ट विल रन इन द मार्केट। देन द नेक्स्ट मॉडल इज पाइनियर, माइग्रेटर एंड सेटलर्स। पाइनियर कौन है, माइग्रेटर कौन है, और सेटलर्स कौन है? सेटलर्स वो होते हैं जो कि आपकी जो मार्केट में चीज है, वो मी टू, बस वही की वही प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। वो चेंज नहीं होना चाहते, और वो वही उसी के पीछे दौड़े रहते हैं, लकीर के फकीर उनको कहते हैं, जो चीज वही वही चीज बनाएंगे। और माइग्रेटर वो होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में चीज है उससे थोड़ी सी बेहतर, दे विल मेक बेटर, और वो उनसे बेहतर हो गए। जो रेड ओशन वाले हैं ये सारे, ये जो है सेटलर, और जो माइग्रेटर है, ये उनसे, ये येलो ओशन में कह सकते हैं। येलो ओशन, येलो ओशन का मतलब ये है कि उनसे बेटर। नाइदर यू आर इन रेड ओशन, नॉर यू आर इन ब्लू ओशन। और जो फ्यूचर को सोच के काम करता है आदमी, फ्यूचर में ये करूंगा, दीज पीपल आर इन ब्लू ओशन। ये सारे के सारे ब्लू ओशन वाले हैं। आपको ब्लू ओशन के लिए काम करना है, आगे की सोच के करो। मैं ये नहीं कहता कि आपकी प्रोडक्ट जो है इमिडिएट करो, आप विजन रखो, गोल रखो, धीरे धीरे उसको चेंज करिए। देन सीक्वेंस ऑफ ब्लू, आप जो ब्लू ओशन की स्ट्रेटजी है उसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले है, वो बायर यूटिलिटी है। डज इट सॉल्व द पेन ऑफ द पीपल? सो उसकी पेन को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इज इट अफोर्डेबल? क्या वो प्राइस बेचारे अफोर्ड कर पाएंगे जो मेरी प्रोडक्ट है? या मैं लॉन्च कर रहा हूँ और अपना बाजाबड़ा, वो कोई खरीद नहीं पाएगा? देन कैन वी प्रॉफिट? प्राइस इज ओनली फॉर द बायर। सबसे पहले आपको कॉस्ट से पहले प्राइस सोचनी है। पहले कॉस्ट नहीं सोचने का, हम उल्टा सोचते हैं हमेशा। बायर यूटिलिटी बाद हम सोचेंगे मार्केट में प्राइस क्या है इसकी, उसके बाद मैं फिर उसको मैन्युफैक्चर करूं विद इन दैट प्राइस, जिसको कॉस्ट कहते हैं। हम उसकी कॉस्ट अपनी क्रिएट करें ताकि मेरे को प्रॉफिट भी मिले। ऐसे नहीं है कि मैं वो चीज क्रिएट कर दूं एंड देर इज, यू नो, आई एम एट लॉस। और विल दे एक्सेप्ट इट? क्या मेरी चीज को वो एक्सेप्ट करेंगे? दिस इज हाउ वी गो सीक्वेंस, वन बाय वन। हम इसको तोड़ नहीं सकते, 1 2 3 4 हम ऐसे चलेंगे। नाउ ये तो सारा मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू हाउ यू कंसीव, हाउ यू मेक द ब्लू प्रिंट। ये ब्लू प्रिंट बनाना था, जो भी आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज आपने क्रिएट करनी है, दिस वाज ए ब्लू प्रिंट। अब हाउ यू इम्प्लीमेंट इट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू इम्प्लीमेंट, you how you turn your idea into profit. So what are the various models? There are different models are there. First is tipping point model. Second is fair process. Third is adoption. मैं आपको सब समझाऊंगा, डोंट वरी। एंड द नेक्स्ट इज build execution into strategy.
Now I'll tell you one by one. What is tipping point leadership? Tipping point leadership ये है, कोई भी आप नई चीज क्रिएट करो, anything you want to change, there are always four hurdles to all know. What are the four hurdles? One is cognition hurdle. आप दिमाग आप करते कुछ हो, ब्रेन कहता ना बाबा ये नहीं, I don't want to do it. Then people are not motivated, है ना? लोग मोटिवेट नहीं होते, लोग कहते हैं क्या करना है यार, जैसे चल रहा है चल तो रहा है ना, आप क्यों इस चीज को चेंज करना चाहते हो? व्हाई यू वांट टू चेंज इट? थिंग्स आर मूविंग वेरी गुड। थर्ड इज पॉलिटिकल हर्डल। कुछ ऐसे लोग हैं वो आपको काम काम नहीं करने दे रहे। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी इवन यू वांट टू मेक एनी प्रोडक्ट, एवरीवेयर देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल पीपल, दे विल ऑलवेज अपोज यू, राइट और रॉन्ग। सो दे विल नॉट थिंक, उन्होंने आपको अपोज करना ही करना है ना, वो अपोजिशन ब्लॉक होते हैं। देन द फोर्थ इज रिसोर्स हर्डल। आपके दिमाग में आता है यार ये लोग मुझे बड़े चाहिए, है ना? कोई भी चीज आप करो ना, तो देन इमीडिएटली देयर इज अ वॉइस, ओहो ये तो और आदमी लगेंगे, और पैसा लगेगा, और चीजें लगेंगी। बट दिस इज नॉट लाइक दैट इन रियलिटी। In reality, it is not this like this. It is something totally different. How you create it. I give you a small story. So, see this gentleman. This gentleman is Bill Breton. Bill Breton वो है जो यूएसए में न्यूयॉर्क का कमिश्नर बना, और वो कमिश्नर जब बना था, he was probably in 1990, और वो उस समय न्यूयॉर्क was rut, न्यूयॉर्क was crime. Everybody was fearing to travel at night. Probably you know you don't know this thing. This is what was New York. It was the hell of the town. सबसे गंदा टाउन था न्यूयॉर्क। Then the gentleman was posted, and he created and transformed New York within 2 years as the safest zone of world. कैसे किया? How you did it? उसने किंग पिन तैयार किए। किंग पिन वो है, उसने आइडेंटिफाई किए कुछ लोग जो कि उसकी बात को, जिनका इन्फ्लुएंस है, those people they have influence and they can help to change the thing. You don't have to go to masses. अगर आपके पास वहाँ सारे आदमी हैं, सबको बात करने की जरूरत नहीं है आपको। You choose only say 2% people, 3% people, choose small people and try to engage them, try to train them and put them before, और उन लोगों से आप काम कराएं, और they will help you to change the thing. Then the second thing was फिश बॉल्स। ये फिश बॉल मैनेजमेंट उसने क्रिएट की। उसने मीटिंगें करता था। ही वॉज ऑलवेज मंथली मीटिंग, फोर्टनाइटली मीटिंग, एंड ही वॉज कॉलिंग द ऑफिसर्स, एंड ही वॉज कॉलिंग एंड दे विल नरेट द स्टोरीज। वो स्टोरी ये नरेट करते थे, जनाब मैं वहां पे गया, इन दैट टनल द क्राइम रेट वॉज लास्ट मंथ वॉज दिस मंथ, नाउ इट हैज रिड्यूस टू दिस। बिकॉज एज यू नो, सीइंग इज बिलीविंग। व्हाट डज इट मीन? वो कमिश्नर साहब जो टनल होती थी जहाँ क्राइम रेट ज्यादा होते थे, ही यूज टू विजिट फर्स्ट टाइम, और वो बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट आदमी थे उनको ले जाता था, उनको दिखाता था। ऐसे ही एक एग्जांपल है, एक हॉस्पिटल की, वन डॉक्टर वाज वेरी एडमेंट। वो उसको लोग कहते थे यार फर्स्ट एड के लिए हम आते हैं, एंड 3 hours we have to wait it for first aid, and the management what he did, the doctor was asked to sit down for 3 hours outside that first aid room, and then he experienced, उसने जब एक्सपीरियंस किया, और उसने ही चेंज द प्रोसेस, ही चेंज द स्ट्रेटजी, फिर उसने अडॉप्ट किया उसको। बिकॉज इट इज नॉट इजी टू गेट एनीथिंग अडॉप्टेड बाय द पीपल। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस लाइक दिस। सो दिस इज ऑल वी हैव टू डू इट, एंड देन वी कैन चेंज एनीथिंग एंड ब्रिंग एनी न्यू थिंग। ये देखिए, दिस इज ए डोमिनो इफेक्ट। अब आप एक दो आदमियों को चेंज करेंगे ना, जो किंग पिन होंगे या दूसरे होंगे, चेंज कराएंगे, बाकी लोग उनके पास अपने आप पीछे चलते जाएंगे। देर इज अ लीड ऑफ कॉन्सिक्वेंस। व्हेन यू सी पीपल इन दैट फिश बॉल, सो व्हाट यू सा, इसमें आपने क्या देखा? ये दो आदमी कहानी सुना रहे थे, भाई हमने ये चेंज किया, ये चेंज किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि बाकी सारे जो सुन रहे थे, दे आल्सो ट्राइड हार्ड, दे आल्सो चेंज।
So this is how it happens. This is domino effect. वो सारे अपने आप करना शुरू कर देते हैं. So now next model is when you want to implement any new thing, any adopt thing, this apply the model of three. आप सबको एंगेज करें. कोई स्ट्रेटजी ऐसे मत तैयार करें, कोई स्ट्रेटजी ऐसे ना तैयार करें उसको से एक रूम में बैठ के और उसे एसी रूम में बैठ के तैयार मत करें. You just engage the people and tell them so that their fear is removed. है और कोई दिक्कत आती है तो उनको कहे लेट मी हेल्प, तो उनको आप हेल्प करें. द सेकंड थिंग, एक्सप्लेनेशन. उनका जो कंफ्यूजन है वो रिमूव करें. ट्राई टू रिमूव देयर कंफ्यूजन. हियर इज व्हाई वी चूज दिस. उनको बताएं बाबा दिस इज द रीजन व्हाई वी वांट टू चेंज इट, बिकॉज there are examples when some people want to change, certain project. Say some hospital they want to open some new clinics also. तो डॉक्टर बड़ा अपोज करते. यू एक्सप्लेन देम एंड ट्राई टू कन्विंस देम. देन एक्सपेक्टेशन, और उनकी सुने. तो व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन, एंजाइटी और हेजिटेशन उनकी रिमूव करें. हियर इज व्हाट यू डू नाउ. नाउ इफ यू हैव फेयर प्रोसेस, आपके फेयर प्रोसेस है. अब आप एक चीज को डिसाइड करके आप नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, भाई दिस थिंग विल हैपन लाइक दिस. नोबडी विल एग्री. कोई आदमी का काम नहीं हुआ. यू डोंट नीड कैरेट एंड स्टिक ऑल्सो. पहले पहले क्या करते थे, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको इनाम दे दिया, है जी. नहीं काम किया तो स्टिक मारी उस पर. दे पनिश देम. दैट इज नॉट लाइक दिस. यू रिप्लेस कैरेट एंड स्टिक टू थ्री की एलिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड fair process. What are the consequences of fair processes? You are emotionally, you will be recognized. आप खुश हो जाओगे जब आपसे बातचीत करेंगे, आपका ट्रस्ट मेंटेन होगा. यू विल बी शेयरिंग योर नॉलेज, पीपल विल बी हैप्पी टू शेयर इट, एंड वॉलंटियरली कोऑपरेशन आपको मिलेगा. यू विल दे विल नॉट डू द वर्क, you don't have to enforce anything. People will come forward and voluntarily, they will do the work. And what if you don't do it, what will happen? Emotional indigestion, distress will create, नॉलेज विद होल्डिंग. कोई बताएगा ही नहीं आपको, कोई आपसे नॉलेज शेयर ही नहीं करेगा, और नॉन कोऑपरेट करेंगे आप. आपका जो स्ट्रेटजी है, नया चीज आपने क्रिएट करनी है, वो आपकी एग्जीक्यूट करने के समय फेल हो जाएगी, टोटली फेल. देन अडॉप्शन हार्डन, वो भी मोर और लेस इज सेम. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फियर, है ना. उसमें तीन तरह के लोग होते हैं. एक तो वो है जो काम करने वाले, विच हैव फियर्स, एंड लोकल बिजनेसमैन जो बाहर से आपके करेंगे एक्सटर्नल, एंड देयर आर सर्टेन रेजिडेंट. मान लिया आपने एक क्लीनिनेस, टाउन क्लीनिनेस ड्राइव चलाई, कोई प्रोजेक्ट है, टाउन योर क्लीन. व्हाट विल हैपन, वो जो वर्कर है वो कहेंगे यार काम बढ़ा, है ना. और जो लोकल बिजनेसमैन है जिनको ठेका दिया हुआ है वो कहेंगे यार कॉस्ट बहुत बहुत बढ़ जाएगी, ये तो गवर्नमेंट हमें बहुत ज्यादा करेगी. और अदर ये, और रेजिडेंट कहेंगे, जिनको रेजिडेंट का, या दूसरा मेरा साथ वाला जो है मेरा नेबर तो करता नहीं, मुझे क्यों करना, मैं ही करूंगा क्या. दिस इज व्हाट इट हैपेंस. सो एंड व्हाट यू डू, यू उसके लिए आप उनको इक्विपमेंट ला के दे, टैक्स में रिबेट दें बिजनेसमैनों को जो ये काम कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है. और कम्युनिटी को आप इनवाइट करें, उनकी मीटिंगें करें, और इन्फोर्स करने की कोशिश. दिस इज ऑल डूइंग बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन. को क्रिएट से काम होगा, इसमें ऐसे काम नहीं होगा. एनफोर्समेंट ऐसे नहीं हो सकती. यू को क्रिएट, को ऑर्डिनेट, है ना. दिस इज हाउ यू को एलिवेट ऑल्सो. आप चीजों को बहुत ज्यादा अप ले जाते हो. एंड देन द लास्ट इज बिल्ड एग्जीक्यूशन इनटू स्ट्रेटजी. ये कैसे, ये जो एग्जीक्यूशन है, जो भी आप काम करें, एक तो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बिल्कुल वो स्ट्रेटजी को तैयार कर रही थी, प्लान कर रही थी, ब्लूप्रिंट बना रही थी, और उसके बाद उन्होंने प्लान को दिखा दिया लोगों को, ये आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव इट. एंड पीपल सेड ओह माय गॉड, हु इज ही टू टेल अस वी कांट डू इट. नो, लाइक दिस, यू हैव टू प्लान द थिंग्स एंड एग्जीक्यूट टुगेदर. आपको जो भी स्ट्रेटजी नहीं तैयार करनी है, उसको तैयार करते हुए उनको इन्वॉल्व करें, और को तभी आप कामयाब होंगे इसी चीज में. देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है, एक बच्चे की एग्जांपल है. सो वो उसने खुद ही सोचा मैं सवेरे जिम में जाऊंगा, उठूंगा, बट ही वॉज वेरी लेजी बॉय. और वो क्या करता था, वो जब भी 6 बजते थे बटन को यूज कर देता, है ना? वो उसको वो उसको बंद कर देता था. तो दिस इज व्हाट हैपेंड. और वो जब वो सवेरे उठा, अब उसने नई स्ट्रेटजी तैयार की,
उसने कहा भाई आगे से मैं सुबह तो उठ नहीं सकता, व्हाट शुड आई डू, when I come back from my office, then I will do the exercise. And he prepared all his dresses for the evening. और शाम को आऊंगा वो अपना जाने से पहले सारी चीजें तैयार करके वो रख जाता था। और उसके बाद जब आता था, he was motivated, he was seeing that thing, environment, he changed the environment, and what happened? And he started doing it and became successful. Or there are few examples I want to show you, those who have adopted Blue Ocean, and they are very successful. सो दिस इज सिरिक डूसलेर, ये जो हमने सर्किस को अभी बताया है, नेटफ्लिक्स इसने भी चेंज कर दी मार्केट को, ये इट बिकेम इन ब्लू ओशन। देन एप्पल, आईपॉड एंड आई ट्री, दे एग्जांपल्स ऑफ ब्लू ओशन। दिस इज, ये एनक की कंपनी है, वारवाई पार्कर, दिस इज आल्सो ट्रांसफॉर्म द आईवीआर। देन इज टेस्ला, वो डाइसन, ये इक्विपमेंट बनाती है, घरों के इक्विपमेंट। उबेर कार, इसने बिल्कुल मार्केट को चेंज कर दिया। साउथ वेस्ट एयरलाइन, इसने क्या किया, सारी जो थी ना लग्जरी आइटम को खत्म कर दिया इसने, स्लोली एंड स्लोली। इसने सिर्फ फोकस किया स्पीड पे, एफिशिएंसी पे और कॉस्ट पे, कॉस्ट कम कर दी और एफिशिएंसी बढ़ा दी। एयरबीएनबी, आपने देखा लोग पहले बड़े बड़े होटलों में की जगह अब एयरबीएनबी आ गए हैं। आपको क्या करना है, एक रात रुकना है, दो रुकना है, यू डोंट नीड ए बिग लॉबी, you don't need huge type of a swimming pool and other thing. Then Airbnb, it is very cheap, anybody can afford it. Then इंडिया में अरविंद हॉस्पिटल है, अरविंद हॉस्पिटल ऐसा है, दे आर एट थ्रोवे प्राइस आपके वो ऑपरेशन करते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन इकोनॉमिक ऑफ स्केल, और गरीबों का फ्री इलाज करते हैं। वो ऐसा करते हैं, वो कुछ पैसा आपको 2% आपसे लेते हैं एक्स्ट्रा, जो कि वो गरीबों को फ्री देने के लिए उनका इलाज करते हैं। दिस इज व्हाट दे डू इट। दीज आर ऑल ब्लू ओशन, वी कैन आल्सो डू इट, एंड ऑल माय फ्रेंड्स, यू आर, so you can also be in blue ocean, you can also start something. So ultimately the only way to beat competition is, please stop trying to beat the competition. हमको competition में नहीं जाने का, we have to become different, we have not to become better, we have to become unique, you have become only one. This is all, this is what I want to say. Anything you want to ask, please, I am there on the platform. Thank you very much, God bless you all, wish you all successful. Thank you so much. Thank you. God bless. Sir, excellent presentation. Thank you so Very much. good. Thank you so much. Nice. Very good, sir. Very Thank nice you. presentations. So Excellent. Suri Saab is a top guy in ISRO. We have people here from IIT, from top defense officer. He was a top guy in ISRO. So he retired, and even now he's consultant with them. We have taught a lot of people. And we have Commissioner Mr. Kamal Jyoti ji. He is Commissioner Customs, just retired recently. Lot of people. And my brother-in-law, Mr. K.D. Sharma. He retired also from same department, K.D. Sharma. He is from the same department. Now he has changed himself and gone to Blue Ocean. He has changed his life and he has Awesome. become a great singer now. ये कमल ज्योति जी भी बड़ा अच्छा गाना गाते हैं जगह जगह पे। After retirement, he acquired his new hobby and led lot of people from our association. Thank you, sir. Arun sir, over to you, sir. Over to you. Arun sir is my mentor. Thank you. Arun Saab is my mentor. He is visiting a lot of faculties and he is mentoring, a lot of people. I am with him for last more than 5 years. Whatever little I have learned, but I have, because of his kindness, I have learned. Arunji, over to you. It was extraordinary. It was Yata. very good. Yes, It was thank you. extremely, it was good. And I can see the flow was excellent. That means you have really understood the subject. That's why you have been able to deliver. बस एक ही चीज कहना था, बहुत अच्छा होता यदि आप हर एलिमेंट को अलग से एक क्लास करते। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब आपने कॉम्प्रेस कर दिया। और 6 पाथ को यदि आप अलग से you can easily give one full class for 6 path. It would have been of tremendous use to everybody. सोचिए, सोचूंगा सर। या ERRC मॉडल को आप अलग से एक क्लास करते, एक घंटे का क्लास हो सकता। हाँ, एक घंटे का बड़े आराम से आप दे सकते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजी, कैनवा, वैल्यू कर्व, ये सब जो है अलग अलग से आप यदि अलग से क्लास करते तो कितना बढ़िया होता, बताइए। With your blessing. हाँ, नहीं, आप कीजिए क्योंकि यू सी
I'll tell you one thing, you will be a great inspiration for many people, because at this, after retiring, you have been so active, and now at this age also, when you show this sort of an interest, you will be a beacon who can guide other members of your community. And I'm so happy that so many of your friends have come to listen to you, to encourage you, to support you. It shows that you are an excellent human being. क्योंकि आजकल किसके पास वक्त है गोस्वामी सर? सब अपने में ही इतने मतलब व्यस्त हैं कि कोई आने के लिए तैयार नहीं रहता किसी चीज के लिए. सीखना तो बात दूर की बात है. And today, information is very freely available because of AI. But even then, so many people have turned up. Your friends circle have come. It's a testimony to your public relations and your, goodness of heart that so many people have come. Thank you, sir. Thank you. आप और प्रोग्राम दीजिए. हाँ, तो डिसाइड कीजिए. हो सकता है अगले 15 दिन के अंदर you can one by one, यहाँ पे किसी ने कहा कि despite the Wimbledon they have come. That's very true. Despite the Wimbledon they have come. There are so many things going on, and despite all that, people have come, and you have not disappointed them. That is the most beautiful thing about it. Thank you, sir. That is the most beautiful thing. You have been able to give true Thank value you, Sujata ma'am. to people. And this, this red ocean and blue ocean needs to be handled in greater detail by you. Because it is what is the real bane. आपने जो कहा 6.8 lakh companies have been closed down. You see, it is a continuing story. It's not as if that saga has ended. Every day companies are closing down. Every day people are losing job, and with the advent of AI and robotics, things are becoming even more tougher, and people have to be much more creative and have to think out of the box to be able to find solutions for the problems which they are facing. So thank you, Goswami sir, for your excellent Thank you, institution. everyone. Thank you, Goswami sir. Anyone has So, any questions? आपने time निकाला है. We are all great gratitude. Extraordinary. If anyone has any questions, please feel free. Mr. Goswami is there to answer. Certain questions were put in the chat box, sir. If he could check it out and give certain answer, it would be better, sir. What we felt was also in the chat box also. What is it? Why don't you just tell? Why don't you just read out? Actually, one of the person has asked that how far this blue stage strategy will become a red ocean strategy. One person has asked. So the answer I want to give answer. So I already told also we have to be innovative always. Otherwise, people are chasing us. So blue ocean doesn't mean it is a permanent thing. It can be red ocean also. Okay. So now see the competition between Coca-Cola and Pepsi-Cola, and see the competition between Bisleri water. It came, and now so many products. It is not now blue ocean. It is in the category of red ocean. Thank you. Yes, sir. That was one or two question was there, sir. One request to Anilji is that, like Mr. Arun suggested, I think we need little bit broken up into modules. This is very hard to digest in one session. More than that, I think, if he takes each one of these strategy elements separately, people will be able to appreciate it, and it will give them better idea. The seeding of the idea will be better. You are right. We can split into 4, 5, 3, something like that. Yeah, at least 2 to 3 means that's the barest minimum I can imagine. Means if not 5 sessions, at least 2 to 3 sessions are required to understand it deeply. Sorry, we are losing. You are muted. Sorry, sir. We can treat it just like a master class overview of as a whole everything, and little more descriptive. But I do agree. So we can have as many as sessions. This is very important subject.
गोसाई जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है willing to work with तो you on this and understand from you and help you create हाँ whatever needs to get. तो chapter by chapter we can Yes, someone has take it. observed, the splitting alone is not enough. It has to go into greater depth. Yeah, with Yes. supported by each concept should be supported by maybe a few examples from Indian industry, some from the international industry, and then some which shows how a person who was struggling in the red ocean transited into the blue ocean, what he did, how he did it. And then, like somebody asked, how long will it take for a blue ocean to become a red ocean? We can take some examples. You can take, Yes. Goswami So sir, maybe a case of study how. like what you are Like suggesting. circus, one example we gave for circus, it transformed, ultimately now they are huge So, sir, success. I think, sir, So you we have can I already. think, we can stop Anilji, recording, sir. what you can do is you can pick up some success stories